Hello and welcome to Sunil Jha Show and you are watching P for Politics. भारत के दो नाम हैं. Officially, India is represented or termed as India and also Bharat. यानी भारत और India ये दो official name हैं as per Constitution that has been given to our country. But now there appears to be a huge controversy on the issue whether the government is headed to change the country's name or rather amend the country's name to make it only one name, which is Bharat and not India. वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी पिछले 24 घंटे में हुए हैं उसके बाद एक पूरा डिबेट इस सवाल पे छिड़ा हुआ है कि क्या सरकार देश का नाम केवल और केवल भारत करने की तैयारी में है. क्या मोदी सरकार इंडिया को ऑफिशियली देश के नाम के तौर पे नहीं रखना चाहती है. इज द गवर्नमेंट गोइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक भारत एज द कंट्रीज ओनली ऑफिशियल नेम? दिस क्वेश्चन हैज कम अप एज एंड इज बीइंग डिबेटेड सीवियरली फॉर 3 रीजंस. अब 3 रीजंस हैं जिसके कारण ये क्वेश्चन whether the government is going to change the constitution and make Bharat as the official and only official name of this country. So अब तक अगर भारत और इंडिया के नाम से रेफर कर रहे थे इस देश को, तो आगे से क्या सरकार इस तैयारी में है, मोदी सरकार, कि अब आगे केवल और केवल भारत को भारत के तौर पर ही रेफर किया जाएगा, whether while speaking English or speaking Hindi. And if this debate has been ignited, there are reasons for it. Fundamentally, there are 3 reasons. One by one, I am just outlining those reasons and then we'll go into the details of what has happened. पहला रीजन ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने G20 समिट अभी होने वाला है. आप सब जानते हैं कि G20 समिट इज बीइंग हेल्ड इन द नेशनल कैपिटल, दैट इज न्यू दिल्ली, फ्रॉम द 9th of September till 10th of September. ये 2 दिन की G20 समिट पहली बार भारत में हो रही है. इससे पहले भारत में कभी G20 समिट नहीं हुई. इंडिया ने कभी भी G20 का चेयरमैनशिप नहीं लिया या प्रेसिडेंटशिप नहीं लिया. This is the first time and it's a prestigious event when G20 is being held in India and New Delhi is hosting it. So while there is a preparation and there is a government activity going on as far as G20 summit is concerned, a lot of new things are coming to fore. So one of the thing is that the president Draupadi Murmu, she sent out invitations for the official dinner of G20 on the 9th of night at Rashtrapati Bhavan. So शुक्रवार 9 तारीख की शाम, 9 तारीख यानी आज 5 तारीख है, आज मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 8 शनिवार, Saturday, if I'm not wrong, Saturday is 9th. So 9th of September, there is an official dinner hosted by the Rashtrapati Bhavan for all the dignitaries, all the guests, all the special invitees of the G20 summit. अब ये सबसे पहला रीजन और पहला कॉन्टेक्स्ट है जिसके कारण ये सवाल उठा कि क्या सरकार इस देश में का नाम केवल और केवल भारत करने वाली है. Is the government only going to name this country as Bharat and going to remove the name India from the constitution? Why this question came? What was so special about the invitation that Draupadi Murmu, the president of India, sent out? In the invitation, while referring to the president, that the president requests your presence at the dinner, there normally what happened till now was that the president would write the president of India or the president of Republic of India. But now this time there has been a change. And Draupadi Murmu has referred herself as the president of Bharat. And she has requested the pleasure of the company of XYZ and the name of the dignitaries or the special invitee or the guest. So the whole controversy started because President Draupadi Murmu sent out an invitation for the official dinner of G20 summit on the 9th of September in which she referred herself as the president of Bharat. तो जो कंट्रोवर्सी हुई वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू ने जो न्योता भेजा गेस्ट को
उसमें लिखा कि वो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर आपको ये निमंत्रण दे रही है। अब हिंदी में आमतौर पर भारत ही लिखते हैं, इंग्लिश में इंडिया लिखते हैं, लेकिन ये इनविटेशन इंग्लिश में भी भारत के तौर पर ही भेजा गया। दूसरा रीजन, ये तो पहला रीजन है इस पूरे कंट्रोवर्सी का और इस सवाल का कि व्हाई देयर इज अ स्पेकुलेशन अबाउट वेदर द नेम ऑफ द कंट्री इज बीइंग चेंज। सो इसका पहला रीजन तो द्रौपदी मुर्मू का ये इनविटेशन। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द 18th ऑफ सितंबर टिल 22nd ऑफ सितंबर बुलाया है 5 दिन के लिए। अब ये स्पेशल सेशन को बुलाने की जरूरत क्या पड़ी? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि व्हाई इज द स्पेशल सेशन इज बीइंग कॉल्ड। अब 3-4 चीजें एजेंडे पे हैं। हो सकता है ये स्पेशल सेशन यूनिफाइड सिविल कोड पर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो, या फिर विमेन्स रिजर्वेशन पे हो, या वन नेशन वन इलेक्शन पे हो। इसके अलावा ये जो चौथी चीज which has been added to the list of the possible agenda for the parliament session starting on the 18th of September is what the president has hinted, which is whether the government is changing the name of the country from India and Bharat to only Bharat. तो क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपने इनविटेशन में भारत लिख दिया, तो अब ये स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि जो सेशन सरकार बुला रही है पार्लियामेंट की, स्पेशल सेशन फ्रॉम द 18th ऑफ जून सितंबर, यानी सितंबर 18 से जो सेशन बुला रही है पार्लियामेंट की, उसमें वो ऐसा कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कि बिल ला सकती है और कह सकती है कि हम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं और अब इस देश का नाम केवल एक भारत होगा। दिस इज द सेकेंड रीजन व्हाई, बिकॉज देयर इज अ स्पेशल सेशन बीइंग कॉल्ड, और वो 2+2 करके लोग देख रहे हैं कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है कहीं इसलिए तो नहीं बुलाया गया है कि देश का नाम 2 से 1 किया जाना चाहती है मोदी सरकार। अब तीसरा रीजन क्या है, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि उसका टाइमिंग बड़ा रेलिवेंट है। अब इस तस्वीर में जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया हुआ है, इस तस्वीर में आपको 4 तस्वीरें दिख रही है। पहला कोलाज में पहली तस्वीर प्रेसिडेंट मुर्मू की है। सेकंड, पार्लियामेंट जो नई बिल्डिंग है उसके लोकसभा जो है उसकी है। तीसरी तस्वीर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की, और चौथी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको बदलने की तैयारी है, यानी वो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सरकार बदलना चाहती है, आर्टिकल 1 जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अब इसको बदलने की बात हो रही है, तो इसमें तीसरा रीजन जो है वो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत। अब कैसे? मोहन भागवत का मंडे को सोमवार शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। अब वो स्टेटमेंट को भी लोग इससे जोड़ के देख रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि बहुत जरूरी है कि लोग इस देश का नाम केवल और केवल भारत के नाम पर रेफर करें। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट हियर ऑन पीपल शुड make a reference to this country only as Bharat and not with 2 name or as India. अब उनका कोट क्या है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। लोगों को इंडिया की बजाय भारत कहना चाहिए, ये आरएसएस चीफ मोहन भागवत का स्टेटमेंट। हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको लोग समझते हैं क्योंकि आरएसएस इज द आइडियोलॉग और द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द सोर्स ऑफ द डिसीजंस और द आइडियोलॉजी दैट बीजेपी हैज। सो क्योंकि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी आरएसएस से ड्रॉ करती है, तो मोहन भागवत का स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाता है, बिकॉज फिर वो सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन है बीजेपी के लिए। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको लग रहा है कि ये 3 चीजें जो है, प्रेसिडेंट मुर्मू का इन्विटेशन, पार्लियामेंट सेशन का कॉल करना और आरएसएस चीफ का ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा अब इस देश में लोगों को इंडिया कहना बंद करना चाहिए और इस देश को केवल और केवल भारत के नाम पर रेफर करना चाहिए। वी शुड ओनली रेफर
to this country as Bharat and not India. We should stop the use of the name India and we should only use the name Bharat. And this comes from RSS chief मोहन भागवत. तो मोहन भागवत ने जो कहा उससे बहुत सारे लोगों ने सोचने लगे वो लोग कि शायद सरकार वाकई इस देश का नाम बदलने की तैयारी में. गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया. गवर्नमेंट ने एक बार भी नहीं कहा है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि हम इस देश का नाम भारत से और इंडिया से बदलकर केवल और केवल भारत करने वाले हैं. तो इंडिया और भारत ये डिबेट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज वी हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. लेकिन बात निकाल दी लोगों ने, बात निकाल दी और बात दूर तलक चली गई. अब इसमें कितनी सच्चाई नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा. पार्लियामेंट का सेशन भी होने वाला है, उसका एजेंडा भी अभी आया नहीं. एजेंडा आएगा तो क्लियर हो जाएगा, बट द एजेंडा इज नॉट देयर. So we do not know whether it is uniform civil code or women's reservation bill or one nation, one election or the name. We don't know anything. But this will be known only once the agenda of the next parliament session, which is the special parliament session, starting from the 18th of September till 22nd of September. उसका एक बार एजेंडा क्लियर हो जाए तो पता चलेगा कौन कौन से बिल हैं जो गवर्नमेंट लाना चाहती है या किस लिए वो इस सेशन को बुलाना चाहती है. जैसे ही प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये इनविटेशन भेजा और इस इनविटेशन की बात फैली और उसको फैलाया किसने? जयराम रमेश ने. जयराम रमेश ने प्रेसिडेंट मुर्मू के G20 ऑफिशियल डिनर का इनविटेशन जैसे ही रोल आउट हुआ उन्होंने एक ट्वीट किया और पूरा पॉलिटिकल डिबेट इस पर स्टार्ट हो गया. Now we all know that India is hosting G20 summit for the first time ever in New Delhi for 2 days on September 9th and 10th at the newly built convention center at Pragati Maidan. अब प्रगति मैदान का जो कन्वेंशन सेंटर है वो बहुत खूबसूरत बना है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं. और यहां पर G20 के सारे लीडर्स, ये वो कन्वेंशन सेंटर है जिसकी तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं. यह है प्रगति मैदान का नया कन्वेंशन सेंटर. ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल कन्वेंशन सेंटर, ब्यूटीफुल आउटलुक, ब्यूटीफुल हॉर्टिकल्चर, सब कुछ खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है. और यहां पर दुनिया के 20 सबसे बड़े देश जो हैं उसके नेता 2 दिन के लिए 9 तारीख और 10 तारीख को पहली बार भारत में मिलेंगे प्रगति मैदान. और इस ही इवेंट के जो ऑफिशियल डिनर का इनविटेशन प्रेसिडेंट मुर्मू ने भेजा था और उसी को लेकर इतना डिबेट हो रहा है. और जैसे ही वो रोल आउट हुआ ये पूरा ऑपोजिशन जो आप प्लॉट देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा ऑपोजिशन बेंच एक्टिव हो गया और सबसे पहले एक्टिव हुए मिस्टर जयराम रमेश. तो जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया. जयराम रमेश को आप सब लोग जानते हैं, मैं एक बार फिर से उनकी पिक्चर प्रॉम्प्ट कर देता हूं सो दैट दोज हु डू नॉट नो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. ही इज मिस्टर जयराम रमेश, द कांग्रेस लीडर. स्पीक्स लेस बट दीज डेज ही इज वेरी एक्टिव. सो जयराम रमेश ने जैसे ही ये इनविटेशन देखा उसको उन्होंने अपने ट्वीट के साथ अटैच किया और उन्होंने ट्वीट भेज दी. अब इस ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा और इन्फर किया कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द कंट्रीज नेम एज द इनविटेशन सजेस्ट. एंड देन ही राइटेड व्हाट ही वांटेड टू राइट इन द ट्वीट एंड दिस इज व्हाट ही रोट इन हिज ट्वीट. तो जैसे ही प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनविटेशन भेजा, जयराम रमेश कांग्रेस के जो लीडर हैं वो एक्टिव हुए. उन्होंने कहा सरकार जो है इस देश का नाम बदलने वाली है, इंडिया को हटाने वाली है और भारत को देश का नाम केवल और केवल भारत बनाना चाहती है. और उन्होंने वो इनविटेशन भी लगा दिया जो प्रेसिडेंट मुर्मू ने भेजा था. और साथ में जो उन्होंने लिखा वो ये, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बताता. सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू. दिस इज जयराम रमेश, द कांग्रेस लीडर. सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू. Rashtrapati Bhavan has sent out an invite for a G20 dinner on September 9th in the name of President of Bharat instead of the usual President of India. ये खबर वाकई सच है. राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा है उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है. और ये वो ट्वीट है जिसने जयराम रमेश के उस ट्वीट ने बहुत सारे लोगों को बताया कि शायद कुछ गड़बड़ है. अब इस देश का नाम इंडिया भी है, इस देश का नाम भारत भी है. वी ऑल नो दैट.
that India, this country has two names, and officially two names. While we are also referred by a third name called Hindustan, but officially we only have two names, Bharat and India. So whether the president refers to herself as the president of Bharat or refers herself as the president of India, it doesn't make a difference. But for Mr. Ramesh, Jairam Ramesh, it was a big issue. So the moment he sent out, obviously there was a debate that was bound to start. मेरा सवाल है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, तो भारत का अगर रहने वाला हूं तो मुझे भारत शब्द से क्या एतराज हो सकता है? कोई भी शख्स जो इस देश में रहता है उसे इस शब्द से क्या एतराज हो सकता है? अगर राष्ट्रपति कह रही हैं कि मैं भारत की राष्ट्रपति हूं, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? इससे फर्क क्या पड़ता है? हकीकत यह है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, ये तो सच है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, क्या इस पर भी किसी को एतराज हो सकता है? ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, जो पूरा ड्रामा है, जो पूरा कंट्रोवर्सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज दिस फस ऑल अबाउट? इफ द प्रेसिडेंट सेज दैट शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, सो व्हाट? इज भारत नॉट द नेम ऑफ दिस कंट्री? आर वी नॉट referred as Bharat? When we are referred to as Bharat also, then what is the whole fuss about? Why is so much of debate when just a few days before the G20 prestigious summit, are we discussing this dinner invitation just a day ahead of the summit? क्या हमारे पास एजेंडे के में कुछ भी नहीं है? जब पता है पूरी दुनिया की नजर G20 पे है, जो पहली बार भारत में हो रहा है, हम कंट्रोवर्सी किस बात पर उठा रहे हैं? एक इनविटेशन जो प्रेसिडेंट भेज रही है, एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम लीडर ऑफ दिस कंट्री, out of the political arena. She has nothing to do with politics. So अगर कोई प्रेसिडेंट ये इनविटेशन भेज रही है तो स्पेकुलेशन की गुंजाइश कहां होती है? बट लेट्स एग्जामिन व्हाट जयराम रमेश's ट्वीट इज इन्फरिंग, और वो ट्वीट के मुताबिक सरकार इस देश का नाम बदल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो रही हैं, क्योंकि मैंने जो तस्वीर चौथी दिखाई वो कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि फंडामेंटल तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है. तो कॉन्स्टिट्यूशन देश के नाम को लेके क्या कहता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट एंड देन विल सी वेदर जयराम रमेश's Congress's objection is justified or not, and then I will also ask a few questions which are extremely relevant that all the parties which are objecting to this must answer. So the constitution, while being written in English, अब हुआ क्या है मैं वो बता रहा हूं. Indian constitution was being written in English. We all know this. And while it was being written in English, it referred to India not as India alone, but India that is Bharat. Because the makers of the constitution were particular about the word Bharat to be mentioned in the constitution. Bharat was their first choice and English was taken and India was taken as the co-name. So जब ये डिस्कशन हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया वो सब इंग्लिश में लिखा गया. बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पहले इंग्लिश में लिखा गया. अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फिर आप पहले क्या लिखेंगे? इंग्लिश वर्ड लिखेंगे या हिंदी वर्ड लिखेंगे? इस देश को दो नाम से रेफर किया जाता है. अब इंडिया क्यों कहा जाता है? इंडस सिविलाइजेशन से, इंडस रिवर से इंडिया फ्लो करता है, वहां से इंडिया का रेफरेंस आना शुरू हुआ. भारत का रेफरेंस तो बहुत पहले से आ रहा है. तो भारत और इंडिया एक कॉमन रेफरेंस था इस देश के लिए. अब कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा जा रहा था. चॉइस ये था कि आप एक नाम रखोगे कि दो नाम रखोगे. कॉन्स्टिट्यूशन के जो कमिटी बनी उसमें जो मेंबर्स थे, मेजॉरिटी ने बोला नहीं, वी शुड हैव टू नेम्स बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया विल बी अ bigger nation, it has to deal with the entire world, we should have an English name also. So what's wrong in retaining India? But they did not want to drop Bharat. और भारत को लेकर पूरी यूनिटी थी कि भारत नाम तो होगा ही, क्या इंडिया ऐड करना है या नहीं करना है. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त लिखा, क्योंकि वो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था. दैट इज द फंडामेंटल. मिस्टर जयराम रमेश हैज टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फंडामेंटल, that the constitution was being written in English
Hence, India came first and Bharat came next. Because India, that is Bharat. Otherwise, जो हिंदी में लिखी जा रही होती तो वो भारत यानी इंडिया होता, लेकिन हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखी जा रही. Since India was an English name and Bharat a Hindi name, and because the constitution was being written in English, they decided to use the name India first and then Bharat. But they made it clear that India will not be called India alone, and India will always be called as India and Bharat. And that's why they wrote in as many words, India, that is Bharat, so that no one can get confused कि इस देश का नाम सिर्फ इंडिया है. उन्होंने ऑफिशियली लिख दिया कि इस देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत. अब आपकी मर्जी है कि आप खुद को इंडिया बोलो, इस देश का नाम इंडिया बोलो, या आप इस देश का नाम भारत बोलो. तो प्रेसिडेंट ने अगर भारत बोला तो क्या बवाल. बोथ इंडिया एंड भारत, both the names India and Bharat both has equal constitutional value and status. कोई फर्क नहीं. Constitutional relevance, constitutional value, constitutional importance has been given to both names equally, whether it is India or it is Bharat. दोनों में फर्क नहीं है जहां तक संविधान में उनकी अहमियत की बात है. इन दोनों ही नाम की अहमियत संविधान में बराबर है, चाहे आप भारत बोले या आप इंडिया बोले. यही पोजीशन कल तक थी, यही पोजीशन आज है, और यही पोजीशन रहेगी तब तक जब तक कोई सरकार आती है और इसको बदलती नहीं. यानी कल कोई सरकार आकर इसको अमेंड कर दे, इस क्लॉज को, यानी आर्टिकल 1 को, संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, if any government comes and amends it and makes a change, whether it is India or Bharat or some other name, तब तक ये प्रोविजन ऐसे ही रहेगा. इस देश के दो नाम हैं और दो ही नाम रहेंगे, और दोनों ही नाम की वैल्यू, अहमियत बराबर है. Hence, I feel the objection that Mr. Jairam Ramesh is taking, or any other political party leaders are taking, that objection is illogical, unjustified and mischievous. जो रीजंस मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम की अहमियत बराबर है, ऐसे में इस पर कंट्रोवर्सी जनरेट करना, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, न केवल ये लॉजिक को डिफाई करता है, बेबुनियाद बेमतलब की बात है, बल्कि ये बदमाशी करने का एक तरीका भी है. अननेसेसरी का एक नया कंट्रोवर्सी आप खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो. हाँ, कल ऑफिशियली गवर्नमेंट बोल दे, फिर आपके पास अपना जरिया है, आप रिएक्ट कर सकते हैं. बट विदाउट दैट, टू रेक अप एन इशू लाइक दिस इज, अकॉर्डिंग टू मी, अनजस्टिफाइड. Jairam Ramesh did not stop here. Jairam Ramesh went ahead and wrote further in the tweet. अब उन्होंने क्या लिखा आगे, और ये sarcastic था. This was sarcastic from Jairam Ramesh. Now Article 1 in the Constitution can read, Bharat, that is India, shall be a union of states. But now even this union of states is under assault. तो जयराम रमेश ने आगे लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत जिसे इंडिया कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा. यानी अब जो बदल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अब एक इनविटेशन दे दिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो सरकार, इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया है, कांग्रेस ने प्रिज्यूम कर लिया है, इस देश का नाम बदल चुका, इस देश का नाम केवल एक हो चुका. तो उनके मुताबिक अब जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा, भारत जिसे इंडिया कहते हैं. अब तक इट वाज इंडिया दैट इज भारत, इनके मुताबिक नाउ इट विल बी इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया. तो भारत जिसे इंडिया कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है. नाउ मिस्टर जयराम रमेश, अकॉर्डिंग टू मी, is first of all trying to trivialize the whole thing.
क्योंकि आप इस तरह से ट्रिवलाइज करके या चीजों को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर सकते। ही इज वन ट्रिवलाइजिंग द होल थिंग एंड इज ओवर एग्जैजरेटिंग द होल इशू। बोथ द थिंग्स इज डूइंग। वन, ही इज टर्निंग अ serious topic and serious issue into a very ordinary issue, or he is trying to turn it into a joke. So trivialize करने की कोशिश है. He is trying to trivialize it. One, and over exaggerating the issue because the change of the country. Mr. Jairam Ramesh is in parliament for long, and he clearly knows that any change in the constitution, Article 1 or name of the country, requires parliamentary procedure, and that parliamentary procedure has not been initiated till now. So जयराम रमेश जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर को, सीनियर पार्लियामेंटेरियन को ये पता है कि कोई भी सरकार देश का नाम अगर बदलना चाहती है तो उसे कुछ संसदीय नियमों का पालन करना पड़ेगा। संसदीय कुछ जो परंपरा है, जो तरीके हैं, जो नियम है, उसके तहत उसको गुजरना पड़ेगा और तभी किसी देश का नाम बदला जा सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने कोई इनिशिएटिव इसको लेकर नहीं लिया है। सरकार ने कहीं नहीं बोला है कि हम देश का नाम केवल एक करने वाले हैं, या इंडिया को ड्रॉप करने वाले हैं, या भारत को ड्रॉप करने वाले हैं, या हम कोई और ही नाम रखने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो जयराम रमेश अकॉर्डिंग टू मी इज ट्राइंग टू जंप द गन और प्रीएम्प्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट। अरे प्रीएम्प्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लाना चाहेगी बिल तो लेकर आएगी, आपका काम है उसको डिफीट करना, आप डिफीट कीजिए। लेकिन आने से पहले ही गवर्नमेंट ने कुछ बोला ही नहीं है, आप पहले से इसका मखौल बना रहे हो इस पूरे चीज का, और इस पर डिबेट छेड़ दिया। किस बात पे? क्योंकि प्रेसिडेंट ने एक इन्विटेशन दिया। प्रेसिडेंट को पूरा हक है, प्रेसिडेंट जो चाहे जैसे चाहे वो लिख सकती हैं। आप उसको चैलेंज कर रहे हो। आपको डेमोक्रेटिक सेटअप पे कोई यकीन नहीं है क्या? पार्लियामेंट्री सेटअप पे कोई यकीन नहीं है? यू डोंट हैव एनी फेथ इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? इफ प्रेसिडेंट इज राइटिंग समथिंग, रिस्पेक्ट इट, go and meet her, represent her, speak to her, say why you have written it, but don't question things like this. It's a negative politics that the Congress party is running in this country. Negative politics से आप इलेक्शन नहीं जीतते हो। इलेक्शन आप जीतते हो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से। आपका एजेंडा क्या है वो बताकर, दूसरे के एजेंडा को गिरा कर नहीं, दूसरे के कंधे पे चढ़ कर नहीं। Ultimately, it's all about elections, right? Elections are coming next year. So सारा एजेंडा तो उसी कारण हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट कर रही है वही गलत। तो फिर आपको इतना लॉजिक तो पता है ना कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को बदलना चाहेगी तो उसको कुछ संसदीय नियम को फॉलो करना पड़ेगा और एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड फॉर इलेक्टोरल रीजंस यू आर जंपिंग द गन and trying to do and create a confusion so that the government situation, position, perception is dented just ahead of G20 meeting. I think it's a frivolous issue to talk about. But ऐसा हुआ नहीं है। जयराम रमेश के कहने के बाद बहुत कुछ हुआ है। अगर जयराम रमेश के मान लो एक मिनट के लिए, so whatever he's see, what happens is that if there's something being speculated, speculation is speculation, it doesn't have credence. So if there is something that is being speculated by anyone, even if it is being speculated by Mr. Jairam Ramesh, it will have no credence because that is not a fact. What's on the table of parliament on such an important issue can only be discussed. So sarcasm on such a sensitive issue doesn't make sense according to me. So आपके पास जब आपको पता है कि स्पेक्यूलेशन है, र्यूमर है, बात हो रही है, निकली है, दूर तक जा रही है, लेकिन उस बात की कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई केवल वो है जो पार्लियामेंट के सामने है। अगर सरकार को नाम बदलना है तो बिल पार्लियामेंट के सामने होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर बाल की खाल खींचने से क्या फायदा होने वाला है? बट एग्जैक्टली वही कर रहे हो। तो जब तक हकीकत नहीं तब तक स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन का कोई लॉजिक नहीं होता। इसीलिए सरकाजम
कि अब तो ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर अब कहा जाएगा भारत यानी इंडिया। इस सब की कोई लॉजिक नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर ओनली क्रिएटिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन। दैट्स व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग राइट नाउ। फॉर इंस्टेंस, for 1 minute, even if I accept the interpretation of जयराम रमेश, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि जो जयराम रमेश इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ऐसा इस देश में होने वाला है, या देश का नाम केवल एक होने वाला है, अब ये देश केवल भारत कहलाएगा। The tweet, what he wrote, second part of the tweet, उसमें उन्होंने कहा था, now article 1 in the constitution can be read, Bharat, that is India, shall be a union of states. But now even this union of states is under assault, right? So I'm asking him, how rolling out invitation in the name of the president of Bharat is disturbing India as a union of state? इसका union of state status से क्या connection है? अगर कोई राष्ट्रपति केवल ये लिख रही हैं कि मैं भारत की राष्ट्रपति, आई द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट यू, इससे यूनियन ऑफ स्टेट जो है कांग्रीगेशन, वो डिस्टर्ब कैसे होता है? अब ये मेंशन क्यों किया है? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था ये देश, सरकार को मालूम होना चाहिए बीजेपी को कि ये देश यूनियन ऑफ स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल नहीं है। जब सारे स्टेट्स जुड़ते हैं तब जाके एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, तो डोंट ट्राई टू बी डिक्टेटर। ये वहां से मिस्टर रमेश ने उठाया है और वही क्वेश्चन को यहां चिपका दिया, भले ही उसका कनेक्शन हो या नहीं हो। दूसरी चीज, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द नेम भारत, अगर हमारा संविधान भारत नाम को देश के लिए रिकॉग्नाइज करता है, उसको मानता है, फिर कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी कौन होती है उस पर एतराज जताने वाली? अगर इस देश का संविधान ही कहता है कि भारत इस देश का नाम होगा, तो अगर इसका इस्तेमाल कोई भी करे, चाहे वो राष्ट्रपति कर रही हो, चाहे वो प्रधानमंत्री करें, चाहे वो एक देश का साधारण नागरिक करे, हाउ कैन द कांग्रेस पार्टी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जेक्ट? हाउ डज टेकिंग द नेम ऑफ भारत, भारत नाम का इस्तेमाल, असॉल्ट ऑन द यूनियन ऑफ स्टेट्स कैसे होता है? बिकॉज इज राइटिंग इट्स एन असॉल्ट ऑन द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अलग अलग राज्यों से मिलकर यह देश बनता है और उसी संघीय ढांचा का नतीजा है केंद्र सरकार। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का संघीय ढांचा कहां गया था? कांग्रेस पार्टी का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, दैट मिस्टर जयराम रमेश इज रेजिंग द एंटायर आर्ग्यूमेंट अबाउट the union of states. I want to know, where was the Congress's union of states definition when Sikhs, not just in Delhi, not just in Punjab, across the country were being massacred? सरदारों को मारा जा रहा था, सरदार की फैमिलियों को घर से निकाल के पीटा जा रहा था, न केवल पंजाब, न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश में। और कांग्रेस के लीडर्स उसको लीड कर रहे थे, मॉब को, जिनके अगेंस्ट में आज भी केस चल रहा है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का संघीय ढांचा कहां गया था? उस वक्त क्या भारत यूनियन ऑफ स्टेट नहीं था? क्या उस वक्त कांग्रेस को नहीं पता था कि पंजाब भी एक स्टेट है उसका, उसी संघीय ढांचे का? और पंजाब में रहने वाले आम लोग या आम पंजाबी कहीं भी रह रहे हो देश में, उसका एक इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो इंसिडेंट वाज एन एक्शन और एक्टिविटी ऑफ फ्यू टेररिस्ट। तो जो आतंकवादी कर रहे थे, आपने उसको पूरे पंजाबी, पूरे सिख्स कम्युनिटी से जोड़ के रख दिया और उनके खिलाफ पूरे देश में मुहिम चलाया 4 दिन तक। आज भी बहुत सारे केसेस कांग्रेस के पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं। उस दिन ये संघीय ढांचा कहां? उस दिन यूनियन ऑफ स्टेट्स का डेफिनेशन कांग्रेस पार्टी का कहां गया? Was Punjab not part of this country? Was Punjab, or Punjab does not constitute the union of states that Congress party is talking about? Were you not humiliating people of Punjab at that time? Were you not targeting common citizens of Punjab, common citizens of this country staying in Punjab? The common Punjabis, just because of few terrorists, you punish the whole community. And your leaders, unfortunately, became party to it.
So where was your definition of union of states then? Where was the union of states definition when Mizoram came under attack? When you bombed Mizoram in the 60s, where was the union of states? क्या आपने उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर से कंसल्ट किया, या बगैर कंसल्टेशन के कर लिया, या देश में कोई बहस की थी, या हालात इतने खराब हो गए थे कि आपको अचानक कोई डिसीजन लेना पड़ा बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट द स्टेट? तो फिर जब आपने कोई एक्शन अचानक लिया क्योंकि आपको देश को बचाना था, तो वही जब ये सरकार करती है कुछ चीज, तो फिर आप बोलते हो पुलवामा का स्ट्राइक जेन्युइन है कि नहीं? इज द पुलवामा अटैक जेन्युइन और नॉट? व्हाई? आप कंसल्ट नहीं करें तो संघीय ढांचा डिस्टर्ब नहीं होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्टर्ब नहीं होता है। बट अगर बीजेपी कोई भी चीज कर दे, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्विटेशन दे दे, तो दैट इज डिस्टर्बिंग और इट्स एन असॉल्ट ऑन यूनियन ऑफ स्टेट्स। Where was the union of states definition for the Congress party when for almost 3 decades you kept removing government after government? कभी इस गवर्नमेंट को गिरा दिया आपने, कभी उस गवर्नमेंट को गिरा दिया, जो भी आपकी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी आप उसको गिराए चले जा रहे थे स्टेट्स में, और प्रेसिडेंट रूल लगाए चले जा रहे थे। आप निकालिए इतिहास और देखिए कांग्रेस पार्टी के रिजीम में कितने स्टेट्स में गवर्नमेंट्स गिरी हैं और कितने स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगे हैं और कितनी बार लगे। केवल पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, आप निकालिए पूरे देश की इतिहास और देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितने सरकारों को गिराया और कितने स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाया और कितनी बार लगाया। क्या उस टाइम ये यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं थे? एंड द वर्स्ट, where was the union of states definition when Indira Gandhi, the late Indira Gandhi, imposed emergency in this country in 1975? 1975 में जब आपने इमरजेंसी लगाया इस देश में, वो किस लिहाज से संघीय ढांचे का रिस्पेक्ट था? हाउ वर यू रिस्पेक्टिंग यूनियन ऑफ स्टेट्स? इट्स अ कांग्रीगेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, इट्स अ कांग्रीगेशन ऑफ स्टेट्स where all the states will decisions matter, and the central government is only a byproduct of that federal system, संघीय ढांचा, and union of states is the most important. अगर states नहीं है तो आप नहीं हो। तो फिर ये उस वक्त क्यों नहीं समझ में आया था 1975 में? आज आप दूसरों को लेक्चर देते हो। So when you're talking about assault on union of states, then these are the questions that you need to answer. जयराम रमेश का एक ट्वीट था और उसके बाद बराज ऑफ ट्वीट्स आ गए, वन आफ्टर अनदर। मैंने कहा ना, कंट्रोवर्सी जनरेट किया गया है। व्हाई? सो दैट इंडिया, दिस गवर्नमेंट गेट अ बैड नेम, देयर इज अ बैड परसेप्शन क्रिएटेड जस्ट अहेड ऑफ G20। अब G20 और इन्होंने जो इवेंट्स पहले किए हैं उसमें फर्क क्या है मैं बताऊंगा आपको अलग शो में, आज नहीं, दूसरे शो में मैं आपको बताऊंगा कि जो G20 का ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट कर रही है, मोदी गवर्नमेंट, व्हेन इट इज ऑर्गेनाइजिंग G20, इट इज हैपनिंग इन दिल्ली, एंड व्हेन अ सिमिलर इवेंट हैपेंड in Delhi a few years ago, what is the difference? I will come and tell you about that. I will speak about that because it is very important. You cannot mislead the whole world. You can't mislead the people because something is not suiting you. I'm going to carry a series of stories, a series of shows on how and why there is need not to repeat 2004. Don't defeat Vajpayee. Don't defeat a government which is working, because ultimately it hits your pocket. It affects your salary. It affects your life. Some people are only interested in capturing power. This way, that way, कैसे भी power में रहना चाहिए। उसके लिए कभी कुछ कह दो, कभी कुछ कह दो। I will come and I will speak on that in detail. I was supposed to come and speak about a topic yesterday, but the research was not complete. इसलिए मैं आ नहीं पाया। मैं आ रहा हूँ, वो एक बार रेडी हो जाएगा तो I will come and talk to you on detail कि कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज वक्त के साथ कैसे बदलती है और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए ये अपना नेचर, अपना कैरेक्टर सब बदल देते हैं। Anyway, that apart. So the moment Jairam Ramesh issued the tweet about the president's invitation,
उसके बाद जिन जिन लोगों ने क्या क्या कहा वो बता, और उसके जो रेलिवेंट सवाल है वो भी उठा। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया, he said our constitution clearly says this is constitution of India, the country is known by the name India, I don't think there is a need to change this. Now Mr. Siddaramaiah is a senior Congress politician coming from Mr. Jairam Ramesh's party. Obviously it is flowing from high command, so whether it is the Congress president or Rahul Gandhi or AICC, wherever there is the instructions coming, and that's exactly what is being seen in whatever Mr. Jairam Ramesh or Siddaramaiah or other Congress leaders are saying. So जो कुछ भी पार्टी हाईकमान डिसाइड कर रही है वही जयराम रमेश और बाकी लीडर्स कह रहे हैं. सो सिद्धरमैया के मुताबिक इस देश का संविधान बहुत साफ कहता है कि ये संविधान इंडिया का संविधान है, हमारा देश इंडिया के तौर पे जाना जाता है. मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बदलाव की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है. नाउ मिस्टर सिद्धरमैया, you should know that Indian Constitution is not called only Constitution of India. आप हिंदी संविधान की हिंदी पुस्तिका उठाइए, संविधान का हिंदी वर्जन उठाइए, उसमें क्या लिखा होता है? भारत का संविधान. उसमें इंडिया का संविधान नहीं लिखा होता है, भारत का संविधान लिखा होता है. It doesn't have an exclusive name as India, as I outlined earlier. India and Bharat both have equal relevance, and that is something important for Mr. Siddaramaiah, who is the Chief Minister of Karnataka. For him to understand, it is extremely important. क्योंकि अगर ये लोग नहीं समझेंगे कि क्या क्या है, तो फिर किसको समझाया जाए? क्योंकि ये लोग सीनियर लीडर्स हैं. सो मिस्टर जयराम रमेश फर्स्ट, मिस्टर सिद्धारमैया सेकेंड. कांग्रेस के एक और यूपी के लीडर हैं जो पहले कांग्रेस यूपी के प्रेसिडेंट थे, अब सीनियर लीडर हैं पार्टी के, प्रमोद तिवारी. प्रमोद तिवारी ने कहा पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया जैसे नाम दिए, स्किल इंडिया नाम दिया, खेलो इंडिया नाम दिया, वे यानी बीजेपी इंडिया शब्द से डरते हैं. संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत. ये नेम कैसे हटाया जा सकता है? ये हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के ही लीडर. उनके मुताबिक जब कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो आप इसको कैसे हटा सकते हो? इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है. मैं वही कह रहा हूं, ये प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं या सिद्धरमैया बोल रहे हैं या मिस्टर जयराम रमेश बोल रहे हैं या जो बाकी लीडर्स जिनके स्टेटमेंट में पढ़ूंगा, सब प्रिजम्पशन पे बोल रहे हैं. इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया है, इन्होंने एक सपना देख लिया है, इन्होंने स्पेक्युलेट कर लिया है और कंक्लूड भी कर लिया है. इस देश का नाम बदल गया, इस देश का नाम भारत हो गया. भले ही सरकार ने बोला या नहीं बोला, इनके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दिया, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, इस देश का नाम बदल गया, अब यह देश भारत बन गया. जबकि ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं हुआ है. थोड़ा वेट कीजिए ना, इतना हड़बड़ा क्यों रहे? हो जाने दीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट दे दीजिएगा. लेकिन ना हो रहा है. दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, मिस्टर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया INDIA, after the formation of INDIA alliance, they are changing the name of the country. If tomorrow, again, if you listen to him carefully, he is saying इंडिया के फॉर्मेशन के बाद, इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन के बाद ये लोग देश का नाम बदल रहे हैं. इफ टुमारो वी चेंज द नेम ऑफ इंडिया अलायंस टू भारत, विल दे चेंज द नेम ऑफ भारत टू बीजेपी? ये मिस्टर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जब हमने INDIA अलायंस बनाया उसके बाद से ये देश का नाम बदल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. अगर कल हमने इंडिया अलायंस का नाम भारत अलायंस कर दिया तो क्या आप देश का नाम बीजेपी कर दोगे? तो क्या है ये? कम से कम लॉजिक तो एक समझदार पॉलिटिशियन की तरह दीजिए. देश का नाम बीजेपी होता है क्या? देश का नाम कांग्रेस होता है क्या? इस देश में कांग्रेस पार्टी ने झंडा ही अडॉप्ट कर लिया. देश का झंडा और कांग्रेस पार्टी का झंडा देखिए. किसकी बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल?
किस चीज की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियंस आज? आपने तो इस देश के झंडे को ही रेप्लिकेट कर लिया है, अब इस देश के नाम को भी रेप्लिकेट कर लिया। तो पहले उसको कॉपी किया झंडे को, अब नाम को भी कॉपी कर लिया। तो जो कॉपी कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। देश के नाम की इज्जत करते, देश के झंडे की इज्जत करते, तो ना वो ट्राई कलर, जो नेशनल ट्राई कलर है, जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके ही सेम आप अपना पार्टी का झंडा नहीं बनाते। और नाम रह गया था तो आपने अलायंस बना दिया इंडिया। यानी न देश के नाम की कोई अहमियत आपके लिए है, न उस झंडे की अहमियत है जिसको हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं। भारतीय ध्वज के तीनों कलर, बीच के चक्र हटा दीजिए तो वो कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। बीच के ध्वज की जगह हाथ का सिंबल आ जाता है, ये है कांग्रेस पार्टी का सिंबल। और अब अलायंस जिसका नाम है इंडिया, so they are basically trying to be synonym to the name of this country, and the party has a symbol which is synonym to the flag of this country, and they are teaching people about what's logical and what's not logical, and what is ethical and what is not ethical. Mr. Arvind Kejriwal से कुछ सवाल हैं। Was the opposition alliance justified in choosing India as the name of your alliance name, considering that India is the name of this country? आपको जब पता था इस देश का नाम इंडिया है तो आपने I.N.D.I.A ही क्यों रखा अपने अलायंस का? क्या वो देश के नाम को डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या उस देश के नाम को डिवैल्यू नहीं कर रहे हैं आप करें तो सही, दूसरा करें तो गलत। आप करें तो रामलीला, दूसरे करें तो रासलीला। Is giving your alliance the same name as the country's name, not disrespecting the country and the name of the country. Are the opposition leaders so big that they consider themselves synonym to the country? क्या आप लोग इतने बड़े हैं कि आपके लिए देश और आपकी अलायंस बराबर है? जो देश का नाम वही अलायंस का नाम, जो देश का झंडा वही आपकी पार्टी का झंडा। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के ही लीडर है, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। द बीजेपी's recent move to change the reference from President of India to President of Bharat on official G20 summit invitations has raised eyebrows and ignited a public debate. How can the BJP strike down India? The country doesn't belong to a political party. It belongs to 135 crore Indians. Our national identity is not the BJP's personal property that it can modify on whims and fancies. जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया. This is what राघव चड्ढा is saying. राघव चड्ढा के मुताबिक बीजेपी ने जो अभी हाल में जो फैसला लिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखेंगे ऑफिशियल G20 इन्विटेशंस में, इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और एक पब्लिक डिबेट छिड़ गया। भारत, बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है? बीजेपी इंडिया नाम कैसे हटा सकती है? देश उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जागीर नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। इट बिलोंग्स टू 135 करोड़ इंडियंस। आवर नेशनल आइडेंटिटी इज नॉट द बीजेपीज पर्सनल प्रॉपर्टी। हमारी जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है वो बीजेपी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जाति जागीर नहीं है कि जब चाहो जैसे चाहो बदल दो। फिर उन्होंने स्लोगन लिखा है, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। Raghav Chadha should go into the history of Indian politics a little bit. From 1947 to 2023, सेंटर में जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, कोई भी पार्टी अदर देन द कांग्रेस पार्टी ने किसी भी नॉन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को नहीं गिराया है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट देकर गिराया है। सेंटर में किसी और पार्टी ने नहीं किया है। न बीजेपी ने किसी गवर्नमेंट को गिराया है, न किसी और पार्टी ने बीजेपी को गिराया है। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने नॉन कांग्रेस पार्टी की जब भी गवर्नमेंट बनी, चाहे वो वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी, चाहे वो चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनी, चाहे वो एच डी देवेगौड़ा की गवर्नमेंट बनी, चाहे वो मिस्टर आई के गुजराल की गवर्नमेंट बनी, या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी,
इन्होंने ही गिराया है। कभी किसी और पार्टी ने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को नहीं गिराया। तो कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है कि वो टिकने नहीं देते हैं किसी को, वो टिकने देना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि कॉपीराइट इस देश पे कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस को लगता है ये पूरी कॉपीराइट देश को चलाने का हक सिर्फ हमारा है, ये कोई और कैसे कर सकता है। तो जब भी कोई और आता है कोई ना कोई तरीके से उसको गिरा देते हैं। जब वीपी सिंह आते हैं तो आप एक चंद्रशेखर को खड़ा करते हैं, जब एचडी देवगौड़ा आते हैं तो आप एक आई के गुजराल को खड़ा करते हैं। जब बीजेपी आती है 13 दिन में आपको बर्दाश्त नहीं होती, उसके बाद 13 महीने में आती है, 13 महीने तक लगातार कोशिश करते रहते हैं और आखिर में गिरा ही देते हैं एक वोट से। और वो भी किसके वोट से? चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। जो शख्स चीफ मिनिस्टर बन गया था उड़ीसा का, उसको लॉजिकली पार्लियामेंट से रिजाइन कर देना चाहिए था, उसने रिजाइन नहीं किया और उसके वोट से वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गई 13 महीने की। प्लीज गो इनटू द हिस्ट्री एंड सी इट, हाउ डिड वाजपेयी गवर्नमेंट फॉल इन 1998। 13 महीने के बाद सरकार गिरा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी की का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करती है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को। सो एक शख्स, गिरधर गोमांगो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Girdhar Gomango had become the chief minister of Odisha, and logically he should have resigned from Lok Sabha, but the Congress party did not make him resign. And when the confidence vote came, because they asked Vajpayee to seek confidence, or they brought a no confidence, I don't remember whether it was confidence vote or a no confidence vote, but they made Girdhar Gomango vote, and Vajpayee government fell by one vote. एक वोट से वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर गिरधर गोमांगो ने आकर लोकसभा में वोट किया और सरकार को गिरवा दिया। ये है कांग्रेस पार्टी। सो राघव चड्ढा को याद रखना चाहिए कि आप कांग्रेस पार्टी नहीं हो, आप आम आदमी पार्टी हो। कल अगर धोखे से आपकी भी सरकार बन गई तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, वो आपको भी टिकने नहीं देगी। According to Mr. Raghav Chadha, BJP has struck down India. My question is, where has the BJP struck down India? Earlier invitations were being sent out in the name of President of India. Did that mean ये बहुत जरूरी है, ये जितने लोग भारत और इंडिया को लेकर डिबेट कर रहे हैं वो इस सवाल का जवाब दें। Earlier, when the government or the President of India were issuing invitations in the name of President of India, did that mean that they were dropping the name Bharat from Constitution, or they were rejecting, they were striking down Bharat? क्या जितने भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट आई जिनके प्रेसिडेंट्स ने लिखा that President of India invites you, क्या इसका मतलब ये था कि the President of India is not the President of Bharat and the name Bharat has been eliminated or struck down? मतलब be logical when you're putting argument. अगर आपकी भावना इंडिया से जुड़ी हुई है तो इस देश में बहुत सारे लोगों की भावना भारत से जुड़ी हुई है। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना इंडिया ड्रॉप करने वाली बात है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना भारत को ड्रॉप करने वाली बात है। बहुत सिंपल है ना, 2+2 को 5 मत बनाइए, 2+2 4 ही होता है, एंड द रूल इज द सेम, चाहे इधर से या उधर से। हाउ योर नेशनल आइडेंटिटी गेट्स लॉस्ट if invitations are issued in the name of President of Bharat? उनका कहना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने से हमारा नेशनल जो आइडेंटिटी है, पहचान है, हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, वही खत्म हो जाती है। तो भाई अगर किसी ने लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इससे आपकी राष्ट्रीय पहचान कैसे खत्म होगी? क्या आप भारतीय नहीं है? क्या आप भारतीय नहीं है? इतनी नफरत भारत से क्यों है भाई? It is true that the country is not anyone's personal property. This is true. But then where is it written in the Constitution that all official communications shall be made only and only in the name of India, and the name Bharat shall not be used anywhere in official communication? ये कहाँ लिखा हुआ है? Mr. Raghav Chadha, Mr. Arvind Kejriwal, Mr. Jairam Ramesh, Mr. Siddaramaiah, Mr. Pramod Tiwari, the whole of the Congress leadership and the opposition leadership,
should explain कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है that you cannot make a reference or make an official communication in the name of India only. केवल आप भारत इंडिया के नाम से ही ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेंगे, ये कहां पे लिखा हुआ है कि आप भारत नाम का इस्तेमाल ऑफिशियल कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते? ये कहां लिखा हुआ? वो एक जगह बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जहां लिखा हो कि आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भारत नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब लिखा हुआ नहीं है तो फिर ये फसाद किस बात? अमिताभ बच्चन बहुत खुश हैं और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया आज सुबह, यानी मंगलवार की सुबह, और उन्होंने कहा भारत माता की जय। अब ये नहीं मालूम कि अमिताभ बच्चन के पास ये इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, लेकिन अमिताभ बच्चन इस बात से खुश हैं कि इस देश का नाम अगर बदला जा रहा है और भारत किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा उनके ट्वीट से इंडिकेशन लगता है कि वो कह रहे हैं भारत माता की जय। एसएम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा आपके स्क्रीन में नीचे हैं, उन्होंने कहा रिपब्लिक ऑफ भारत हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृत काल। मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने कहा रिपब्लिक ऑफ भारत बहुत खुशी की बात है कि, और बहुत गर्व की बात है कि भारत का सिविलाइजेशन, भारत का जो पूरा एक इतिहास है वो वापस अमृत काल की तरफ जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर said they have a problem with everything I don't have. मैं भारतवासी हूं, मेरे देश का नाम भारत था और हमेशा रहेगा, हमें दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं, इस देश का नाम भारत है और मैं एक भारतीय हूं। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, आई विल क्विकली टेल यू व्हाट ही हैज सेड। भारत कहने और लिखने में दिक्कत क्यों है? आप शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं? हमारे राष्ट्र को प्राचीन काल से ही भारत कहा जाता है और इसका उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है। वो बिना वजह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, and that's exactly what is happening. So whatever the Congress leaders are saying or taking objection to, as far as the invitation of President Draupadi Murmu is concerned, that lacks a strong logic, a strong basis. And that is why I say that when you argue, when you put something forward, then there should be a strong reason and logic when you say something. इस वक्त जो कुछ भी ये इस इन्विटेशन पे कह रहे हैं, कोटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट डिफाइज लॉजिक, इसमें लॉजिक नहीं है। Now the question is, where all do we use the word? Where all do we use the word भारत? कौन से ऐसे जगह हैं जहां हम भारत का के नाम का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मुताबिक भारत नाम पे उनको एतराज है, उनको इंडिया नाम सूट करता है, उन्हें भारत नाम सरकार रख दे केवल देश का, ये सही कवारा नहीं गुजर रहा है। बट सवाल ये है कि क्या भारत का नाम का इस्तेमाल कहीं नहीं होता रहा है? कौन से ऐसी जगह हैं, कहां कहां भारत के नाम का इस्तेमाल अभी फिलहाल हो रहा है? वो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या उससे पहले किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, भारत के नाम का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है मैं वो बताता हूं। ऑल द डिबेट्स आर फाइन, यू डिबेट इट दिस वे, you debate it that way, it's all fine, but it is not as if Bharat is not being used anywhere in the official communication or the official machinery, and India is the only name that is referred to while mentioning the country. ऐसा नहीं है कि केवल भारत, केवल इंडिया का ही नाम का ही इस्तेमाल सरकारी चीजों में होता रहा है और भारत का कोई जिक्र कहीं पर भी नहीं है। भारत का नाम कहां कहां हो रहा है उसके कुछ एग्जाम्पल आप सुनिए। इफ वी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम साथ में ये भी कहते हैं भारत का संविधान।
इफ वी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम साथ में ये भी कहते हैं भारत सरकार। अब गाड़ियों में देखते हैं लिखा हुआ था भारत सरकार। भारतीय संस्कृति, इंडियन संस्कृति तो नहीं कहते, इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इंडियन कस्टम्स, इंडियन सिस्टम कहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति कहते हैं। भारतीय कला भी कहते हैं, इंडियन आर्ट, लेकिन साथ में भारतीय कला भी। भारत माता की जय कहते हैं, इंडिया माता की जय नहीं कहते। ये महात्मा गांधी का स्लोगन है जो प्री इंडिपेंडेंस उन्होंने दिया है, भारत माता की जय। कांग्रेस वालों को तो याद होगा, कांग्रेस पार्टी को तो अच्छे से पता है, क्योंकि उन्होंने ही तो देश को आजादी दिलाई है, उन्होंने ही तो हमें आजाद कराया है, इसीलिए तो देश उन्हीं की कॉपीराइट है, वही जो चाहते हैं वैसा ही हो इस देश में, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि देश को उन्होंने आजाद करा दिया। तो उनको तो मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, कौन से स्लोगन महात्मा गांधी ने कहा, नहीं कहा वो अलग बात है, कौन से स्लोगन इंडिपेंडेंस के से पहले दिए जा रहे थे, उनमें से एक स्लोगन था भारत माता की जय, जो आज तक हम लोग बोलते हैं। तो वो इंडिया माता की जय क्यों नहीं बोलते? लॉन्ग लिव इंडिया गॉडेस, ये सब तो नहीं बोला। भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? भारत ही क्यों? भारत finds reference in Ramayana and Mahabharata, whereas India originates much later when there is a reference of Indus civilization or Indus River, which is Sindhu. सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी, इसका रेफरेंस आता है। हमने सुना है सिंधु नदी इस वक्त पाकिस्तान में है जो बहती है, और सिंधु सभ्यता के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन वो इंडस सिविलाइजेशन है क्या? वो जो कहते हैं ना भारतवर्ष, तो जो भारतवर्ष की का जो ओरिजिनल डेफिनेशन था उसमें तो पाकिस्तान भी था, बाकी भी थे। उसी इंडस सिविलाइजेशन से इंडिया वर्ड बाहर आया। सो इंडिया केम मच लेटर। भारत तो बहुत पहले से, भारत का रेफरेंस रामायण में भी है और महाभारत में भी है। अब ये बात है और है कि राहुल गांधी को सब चीज नहीं पता। राहुल गांधी के मुताबिक जो चीज है ही नहीं, वो तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको रियलिटी कैसे मांगे? तो उनकी माने, उनके स्टेटमेंट को देखें तो ये तो हाइपोथेसिस है दैट राम एग्जिस्टेड, दैट कृष्ण एग्जिस्टेड। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एविडेंस। बट अगर भारत का जिक्र उस वक्त भी हो रहा था तो फिर कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो हकीकत होगी। एनीवे, दैट अपार्ट, हमारा जो नेशनल एंथम है, आर नेशनल एंथम, दैट सेज व्हाट? अगर नेशनल एंथम में इंडिया ही अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो नेशनल एंथम में कहीं तो इंडिया का रेफरेंस आता, लेकिन इंडिया का कोई रेफरेंस नहीं आया, भारत का रेफरेंस आया है। भारत भाग्य विधाता। तो अगर नेशनल एंथम की भी देखें तो उसमें भी भारत को ही रेलेवेंट माना गया है। सो किस भारत को लेकर ऑब्जेक्ट करोगा? लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड भारत and India in the Constitution in detail. How did the Constituent Assembly or the Constitution Committee decided to make both as the name? So, as per the facts available, जब Constitution Committee की मीटिंग हो रही थी, when the Constitution Committee was meeting, the Constitution Committee hugely debated whether the country should have one name or two names. जब ये संविधान सभा इस बात का जवाब ढूंढ रही थी कि क्या इस देश का नाम एक हो या दो हो, तो सबसे ज्यादा डिबेट इस बात पे हुआ था कि क्या इंडिया नाम जरूरी है, क्या भारत केवल काफी नहीं है। इस बात पे नहीं हुआ था कि क्या भारत नाम जरूरी है, इस बात पे डिबेट था कि क्या इंडिया रखना भी जरूरी है। सब चाहते हैं भारत नाम, आप इंडिया नाम क्यों ऐड करना चाहते हो? Suggestions were that we should only have one name, and that is Bharat as the country's name. Nowhere during the entire debate, the question of whether Bharat should be a second name or not never came. What came was whether India should be a second name during the entire debate. That is how the entire facts disclose. A lot of members were of the view that we should only have one name, that is Bharat.
इंटरेस्टिंगली, अब सुनिए जो मैं बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन मेंबर्स ने कहा कि इस देश का नाम सिर्फ एक होना चाहिए वो भारत, उनमें से पहले स्पीकर जिन्होंने इस प्रपोजल को रखा दैट वी शुड ओनली हैव वन नेम दैट इज भारत एंड नॉट इंडिया, वो कोई संघ परिवार के मेंबर नहीं थे, कोई राइट विंगर नहीं थे, कोई कांग्रेसी नहीं थे, वो एक लेफ्टिस्ट थे। लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट फ्रंट का एक यूनिट है फॉरवर्ड ब्लॉक, और फॉरवर्ड ब्लॉक इज अ लेफ्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, और उनके मेंबर थे हरि विष्णु कामत, who was a member of the constituent assembly, and he said that we should only have one name, that is Bharat. तो अगर कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन को इतनी ज्यादा दिक्कत है इस नाम से, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी इस नाम को प्रपोज कर रही है या बीजेपी इस नाम को बढ़ा रही है, तो उनको जाकर थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। हरि विष्णु कामत was a member of forward block, which is a left unit and not a right winger. और उनका ये प्रपोजल था कि पहला प्रपोजल उन्होंने ही रखा था, जिसको बाद में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन यूनानिमिटी नहीं बनी और सबने डिसाइड किया कि इस देश का दो नाम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन इन इंग्लिश, हेंस इंडिया केम फर्स्ट एंड भारत केम नेक्स्ट। इंडिया दैट इज भारत। अगर वही संविधान हिंदी में लिखा जा रहा होता तो लोग कहते भारत यानी इंडिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारा डिबेट इंग्लिश में किया, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा, इसीलिए इंडिया नाम पहले आ गया, भारत बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इज योर फर्स्ट नेम। The facts clearly indicate that Bharat is your first name, India is your second name. And then that confusion is also out, that whether it's a right winger right ideology invention that we should have in Bharat as the name. No, the proposal was mooted by a left member. Forward blocks, Hari Vishnu Kamat. And even a lot of people who were saying why it should be Bharat, उन्होंने चाइनीज ट्रैवलर हेन सैंग को भी कोट किया, उनके राइटअप्स को कोट किया कि इस देश का पूरा इतिहास ये बताता है कि ये देश भारत के नाम पर ही जाना जाता है। उन्होंने एक चाइनीज ट्रैवलर को कोट किया। आज तो चाइना को लेकर ये लोग बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं ना, तो इनको उससे अगर फर्क पड़ता है तो ये भी सुने कि चाइनीज ट्रैवलर जो था उसने इंडिया का नाम इंडिया नहीं बोला, उसने कहा इस देश का नाम भारत ही है और भारत ही रेफरेंस रहा है, और इसको लेकर भी मेंशन है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐतिहासिक तौर पे इंडिया की जो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री है दैट आल्सो हैज रेफरेंस टू इंडिया, और अगर हमने इतनी लड़ाई लड़ी है इस देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों को हटाने के लिए, तो हमें इंग्लिश शब्द से इतना प्यार क्यों, इंडिया को हम इतना क्यों रखना चाह रहे हैं? हमने बहुत मुश्किल से इंडिपेंडेंस लिया, अब हमें अपनी आइडेंटिटी बनाने का हक है, और हमारी आइडेंटिटी भारत से आती है, इंडिया से नहीं। ये सब भी कहा गया। फाइनली they decided on the two names, and that's how it all went. Now the question is, if at all the government wants to change the name or make only Bharat as the name of this country, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर इस देश का नाम सरकार को, बीजेपी की सरकार को, जैसा कांग्रेस के लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि ऑलरेडी हो चुका है, मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अगर इस सरकार को, मोदी सरकार को या किसी भी सरकार को देश का नाम बदलना है या देश का नाम एक करना है, चाहे इंडिया या भारत, तो फिर क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द प्रोसीजर? लेट मी एक्सप्लेन दैट प्रोसीजर। Change of a country's name, first of all, requires a parliamentary procedure, and that has not been initiated as yet. As far as the current government goes, the primary requirement of initiating a parliamentary process has not been undertaken. यानी संसदीय नियम, संसदीय प्रणाली का इस्तेमाल देश के नाम को बदलने के लिए जो होना चाहिए वो इस सरकार ने अब तक नहीं किया है। कोई भी देश का नाम तभी बदला जा सकता है भारत में
जब वो संसदीय प्रणाली से गुजरे, लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस सरकार ने नहीं रखा है. सो देयर इज नो प्रपोजल एज ऑफ नाउ टू चेंज और limit the country's name to one name, that is Bharat. That's first. Whether the government actually intends to bring in a constitution amendment bill to make only Bharat as the name of this country can only be known if the parliamentary agenda disclosed by the parliament secretariat, whether it's Lok Sabha or Rajya Sabha, if it outlines in writing that government in this session of parliament, whether in the coming session or after this or ever in future, any parliament session, any time of the year, if the government wants to bring a proposal to change or limit the name, then an agenda has to be issued by parliament secretariat, whether it is Lok Sabha or Rajya Sabha. Till any of the secretariat, Rajya Sabha or Lok Sabha, issues something in writing clearly mentioning the agenda and reference to a bill or a proposal, everything else is speculation. And that's why I say it's all speculative. अभी तक सरकार ने ऐसा कोई प्रपोजल पार्लियामेंट के भीतर लाने की बात नहीं कही. Now I presume that whatever Jairam Ramesh, whatever other leaders are saying is correct. Hypothetically, I'm just presuming that all that these leaders are saying, all these opposition leaders are saying, Kejriwal, Raghav Chaddha, Siddaramaiah, Jairam Ramesh, Pramod Tiwari, whatever these leaders are saying, if I presume that to be correct, or government is planning to bring a bill or constitution amendment bill in this regard during the session that starts 8 days after the G20 summit to change the country's name or limit the country's name only to Bharat, then in that case, what the government will have to do? This is what the government will have to do. Again, I'm saying it's on the presumption. It's on the presumption कि जो कुछ भी जयराम रमेश और बाकी लोग कह रहे हैं वो सही है और सरकार देश का नाम भारत करने जा रही है, तो फिर सरकार को ये करना पड़ेगा. सबसे पहले एक बिल तैयार कराना पड़ेगा. मुझे मालूम नहीं कोई बिल तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, पर अगर ऐसा प्रपोजल लाना है तो एक बिल यानी संविधान को बदलने का मसौदा तैयार कराना होगा और उस बिल को टू अमेंड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में प्लेस करना. यानी गवर्नमेंट विल हैव टू प्रिपेयर अ बिल, ड्राफ्ट अ बिल, and that bill has to be placed before Lok Sabha in all likelihood the first go, and once it is approved then in Rajya Sabha, or the government can also place it in Rajya Sabha and then bring it to Lok Sabha. The bill would be required to be presented in Lok Sabha first and then taken to the Rajya Sabha. Normally it can be reversed also. Generally first the bill is introduced in Lok Sabha and then the Rajya Sabha. But because it's the constitutional amendment bill related to something as serious as this, it would require the approval of both the houses and also the assent of the president. जब तक दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसको पास ना कर दें, बहुत डिफिकल्ट है. बताऊंगा और भी क्या प्रोविजन है. बहुत डिफिकल्ट प्रोविजन है, इतना आसान नहीं है. उसके बाद प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट. वंस द प्रेसिडेंट साइंस इट, then a gazette is issued, government gazette is issued, and once the gazette is issued, then the country's name shall change. And all this takes time. What is most difficult is that any such proposal to change the name of the government, of the country, or to amend constitution, especially article 1 of the constitution, it will require a 2/3 majority. 2/3 मतलब 2/3 बहुमत के साथ ही ये बिल पास हो सकता है. 2/3 मतलब हो गया
अगर 100 लोग हैं तो 75 लोगों को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, 75 नहीं, 2/3 विल बी 66, 66 लोगों को इसके बिल के सपोर्ट में वोट करना पड़ेगा. सो व्हाट डज दैट मीन? लोकसभा हैज 545 members. Ideally, complete strength is 545. Out of that 545, 360 members have to support the bill in Lok Sabha. यानी 545 मेंबर हैं जो फुल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसमें से 360 मेंबर्स को इस बिल के फेवर में वोट करना पड़ेगा. दैट्स नंबर वन. अगर 545 से कम हो गया, उसी रेशियो में जो लोग मेंबर्स वोट कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा. जैसे अभी आई थिंक 438 या 439 मेंबर्स हैं, 6 कम है तो 2/3 में एक सीट या 2 सीट कम हो जाएगा और वो फिगर 360 की जगह 358 हो जाएगा. राज्यसभा में भी 250 सीट्स है, वहां भी आपको 165 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए. अब बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए लोकसभा में 360 वोट्स लाना तो आसान हो सकता है, बट राज्यसभा में 165 वोट्स लाना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव मेजॉरिटी इन राज्यसभा. अब जब तक गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट नहीं हो, कैसे वो ऐसा बिल लेकर आ जाएगी? तो आपको पहले एक बिल को तैयार करना है, उस बिल को आपको लोकसभा में प्रेजेंट करना है, उसके बाद उसको राज्यसभा ले आना है, वहां 2/3 मेजोरिटी से उसको अप्रूव कराना है. जब दोनों जगह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजना है. प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर दे, गेजेट इश्यू हो जाए, उसके बाद ये बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो बदलेगा और गवर्नमेंट इस अब देश का नाम जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भारत कर पाएगी. ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इतना आसान है नहीं जितना कांग्रेस पार्टी के लीडर्स या ऑपोजिशन के लीडर्स बता रहे हैं. इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो मुझे लगता है ये केवल एक पॉलिटिकल फितूर है विच इज बीइंग क्रिएटेड एंड नॉट समथिंग दैट इज एज सीरियस एज इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड. क्योंकि अगर इतना सीरियस होता तो गवर्नमेंट इसको लेकर इनिशिएटिव पहले से ला रही होती, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई प्रपोजल पहले नहीं आया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये हाइपोथेटिकल ज्यादा है और रियलिटी इसमें बहुत कम है. I have a question to ask. Is Congress party a confused party or is it an opportunist party? Now, why am I asking this? This picture is extremely relevant, which I'm putting on your screen right now. I'm surprised at the way the Congress rakes up an issue and contradicts itself on the position it may have taken in the past on a subject, just to suit its political and electoral game. The purpose appears to be very simple: get back to power at any cost. अब मैं ये जो चीज पूछ रहा हूं सवाल कि क्या कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है या फिर वो एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से जब बीजेपी की बात आती है या अपने गवर्नेंस में वापस आने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी कैसे बिहेव करती है. कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड लेती है और उस स्टैंड पर अपने आप पीछे चली जाती है. क्यों? क्योंकि उसको वक्त के साथ अपनी पोजीशन को बदलने की आदत है. उसको इलेक्टोरल फायदा, पॉलिटिकल फायदे पे उसकी नजर रहती है और किसी भी सूरत में पावर में रहना कांग्रेस की मजबूरी है. So it says something on one day and then goes back on it the next day. It says something in year X and then says something in year Y. Bharat was, according to the statements, if you go through the statements of the Congress party and the actions of the Congress party over a period of time, you will realize that Bharat was their favorite subject at one point in time. Today,
India has suddenly become their favorite subject. Bharat, it has a problem with. Congress seems to be mastering the art of double speak. एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी के लिए भारत बहुत अहमियत रखता है। आज भी बहुत सारी जगहों पर जब कांग्रेस पार्टी को सूट करता है तो भारत बहुत अहमियत रखता है, और जब उनको लगता है कि भारत उन्हें सूट नहीं करता पॉलिटिकली एंड इलेक्टोरली आज या पहले, तो जो उन्होंने पहले कहा, पहले किया, उसको भूलकर वो सीधा इंडिया के फेवर में बात करते। अब ऐसा अगर मैं कह रहा हूं तो क्यों? क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी कल तक भारत की तारीफ कर रही थी, भारत को अपना यूएसपी बना रही थी, भारत को लेकर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही थी, आज वो सडनली इंडिया की बात कर रही है। ऐसा क्यों? इट हैज अ प्रॉब्लम विद भारत टुडे। भारत के बारे में उन्होंने लिख दिया प्रेसिडेंट ने, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस पार्टी को बहुत दिक्कत हो गई। कांग्रेस पार्टी चाहती है किसी तरह भी प्रेसिडेंट इंडिया लिखे, भारत नहीं लिखे। डबल स्पीक यानी दो अलग अलग भाषा बोलना, ऐसा लगता है कांग्रेस ने इस आर्ट को मास्टर कर दिया। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ एग्जाम्पल्स है और कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, और आप उसके बाद सोचिए। आई एम टेकिंग यू बैक टू 2004 इलेक्शंस। अब 2004 इसलिए रेलिवेंट है, मैं पिक्चर बोल रहा ना, पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी अपना सेकेंड थर्ड टर्म सीक कर रहे थे। It was the first time when Atal Bihari Vajpayee completed his entire term, rather 6 months less, and called an early election in May 2004. And he was seeking a third term, or rather fourth term. First term for 13 days, second term for 13 months, and third term for 4 years, 6 months. And this was the fourth term that he was seeking, technically. Practically, second full term that he was seeking. एंड द बीजेपी लॉन्च द इंडिया शाइनिंग कैंपेन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो मैं आपको इस वक्त जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सो बीजेपी लॉन्च द इंडिया शाइनिंग कैंपेन टू शो हाउ द कंट्री वाज डूइंग वेल, बट द कांग्रेस पार्टी देन टर्न्ड इंडिया शाइनिंग इनटू पिछड़ा भारत। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडिया शाइनिंग कैंपेन बनाया। प्रमोद महाजन उस वक्त थे। प्रमोद महाजन का ये ब्रेन चाइल्ड था। प्रमोद महाजन ने ये बताने के लिए कि देश कैसे तरक्की कर रहा है या देश ने कैसे तरक्की किया है अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में, उसके कारण उन्होंने इंडिया शाइनिंग कैंपेन स्टार्ट किया। और बीजेपी को लगा कि देश में इस वक्त मूड उनके फेवर में है, इंडिया शाइनिंग कैंपेन उनको उनका सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि भारत में रोड्स बन रहे थे, भारत में हाईवेज बन रहे थे, भारत में एविएशन सेक्टर में बहुत कुछ काम हो रहा था, भारत में रिवर सेक्टर में काम हो रहा था, फ्लड्स एग्रीकल्चर में काम हो रहा था, साइंस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था, और भारत ने 2008 में करगिल वॉर भी जीता था। तो गवर्नमेंट जो वाजपेयी की थी उनको लगा कि इंडिया शाइनिंग इज द करेक्ट स्लोगन विच वी शुड लॉन्च, और उन्होंने अर्ली इलेक्शन करा दिया और इंडिया शाइनिंग कैंपेन के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इंडिया शाइनिंग ये सरकार इसलिए बोल रही है क्योंकि इसको फिक्र सिर्फ इंडिया की है। भारत, इंडिया इज शाइनिंग और भारत पिछड़ रहा है। इंडिया शाइनिंग, पिछड़ा भारत। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी इंडिया शाइनिंग पे फोकस कर रही है और भारत को पिछड़ने दे रही है। तो उन्होंने भारत पे फोकस किया कांग्रेस पार्टी ने, और इंडिया शाइनिंग को बीजेपी का कैंपेन बताकर उसको नेगेटिव कैंपेन बता। What all did the leaders of the Congress party say then when the BJP launched the India Shining campaign? ये सारे पिक्चर्स रेलिवेंट है, वन बाय वन आई एम टेलिंग यू। तो कांग्रेस के लीडर्स ने उस वक्त क्या कहा? जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए इंडिया शाइनिंग को लेकर, टू टार्निश द इमेज ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा योर इंडिया इज शाइनिंग बट आवर भारत इज सफरिंग। आपका इंडिया तो शाइन कर रहा है लेकिन हमारा भारत बुरे हाल में। इंडिया इज नॉट द रियल कंट्री, द रियल कंट्री लाइज इन भारत। इंडिया असली देश नहीं है, भारत असली देश है। इंडिया तो आगे बढ़ गया पर भारत पीछे छूट गया। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कांग्रेस के लीडर्स ने उस वक्त
वाजपेयी के इंडिया शाइनिंग कैंपेन के अगेंस्ट में बोला, इंडिया तो आगे बढ़ गया पर भारत पीछे छूट गया। आप केवल इंडिया के बारे में सोचते हो, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दिया आपने। यू आर ओनली फोकसिंग ऑन इंडिया, यू हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट भारत। कांग्रेस का पूरा कैंपेन भारत सेंट्रिक था। इनका इंडिया इसलिए शाइन कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ पैसे वालों की फिक्र करते हैं। ये कांग्रेस के लीडर्स ने उस वक्त बोला कि वाजपेयी गवर्नमेंट का इंडिया शाइन इसलिए कर रहा है, वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान इंडिया शाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट पैसों वालों की गवर्नमेंट है। ये सिर्फ उनकी फिक्र करती है जिनके पास पैसे हैं। इसीलिए ये शहरों की बात कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत को इसलिए भूल गए क्योंकि गरीबों की इनको फिक्र नहीं है। आपने भारत की बात इसलिए नहीं की क्योंकि आपको गरीबों की फिक्र नहीं है। यानी पूरा कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने भारत 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 और भारत पे किया। उन्होंने पूरा फोकस भारत पे किया और इंडिया को एलिटिस्ट बता दिया, रिच बता दिया। आज जब बीजेपी भारत की बात कर रही है और प्रेसिडेंट कहती है आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वही कांग्रेस ने अपना सुर ताल बदल लिया है, भारत को पीछे छोड़ा है और इंडिया को आगे कर दिया। टुडे दे लव इंडिया। नाउ हियर आर माय क्वेश्चंस। Now these are extremely critical questions and Congress party must ponder over it. Whether even if my video can be seen by one person, it must be seen both by the BJP government and by the Congress regime, because it's very important that you must answer these questions. If Bharat then represented, when you were talking about Bharat as poor and marginalized, if Bharat represented poor and marginalized when you were talking about it in 2004, then Bharat represents poor and marginalized even today when President Murmu is talking about Bharat. What's the problem if the government is bringing Bharat into focus? You also wanted the same thing. आज अगर सरकार भारत को फ्रंट में ला रही है तो आपको परेशानी क्यों? क्योंकि आप भी तो भारत की बात करते रहे। आज अचानक इंडिया की बात क्यों? You in 2004 had a problem with the word India shining. As for you, the word India represented the rich and mighty. Why do you have a problem with the government today? If you were raising the issue of India and Bharat, saying कि भारत जो है वो अमीर और जो एसेट्स रखते हैं, क्या कहते हैं उनको, रिच एंड माइटी, जो ताकतवर है, अमीर और ताकतवर जो है उनको रिप्रेजेंट करता है इंडिया और भारत गरीब को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आज आपको क्या परेशानी है जब गवर्नमेंट भारत इंडिया को भारत कन्वर्ट कर रही है? अगर कर रही है तो अगेन हाइपोथेटिकल, अगर ये गवर्नमेंट इंडिया को भारत में कन्वर्ट कर रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत रिप्रेजेंट करता है गरीब और पिछड़ों को, न कि रिच और ताकतवर को, अमीर और ताकतवर को। तो फिर परेशानी क्या है? आप भी तो यही चाह रहे थे। आज इंडिया को लेकर बात कर रहे हो, भारत से इतराज है, क्यों? रिपब्लिक ऑफ भारत वुड represent what? The poor and marginalized. So good that Draupadi Murmu, who herself comes from that background, being a tribal, if she's saying I am a president of Bharat, basically she's saying I am representing the poor and marginalized of this country. गरीब लोगों के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मैं खुद को भारत की राष्ट्रपति मानती हूं, क्योंकि भारत तो गरीब और कमजोर को रिप्रेजेंट करता है। यही तो आपने कहा। तो फिर आज ये डेफिनेशन बदल क्यों रहा है? स्टिक कीजिए ना, कल कुछ और आज कुछ और, डबल स्पीक क्यों? इज इंडिया मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू देन भारत? इज इंडिया मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू देन भारत टुडे? अचानक इंडिया इंपॉर्टेंट हो गया, भारत कुछ नहीं। बिकॉज यू हैव सच अ ग्रेट लव फॉर इंडिया, शुड इट बी प्रिज्यूम दैट यू आर टॉकिंग एंड बॉदर्ड ओनली अबाउट रिच एंड माइटी? आपने कहा
Vajpayee government is talking about India. India shining because they are only bothered about India. They are not bothered about Bharat. आज today you are talking about India. आज आप भारत इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या ये माना जाए कि आपको सिर्फ अमीर और ताकतवर की फिक्र है? आप गरीब और कमजोर को भूल गए हो? आप भारत की फिक्र नहीं करते? क्योंकि लॉजिक तो सेम होगा ना. अगर इंडिया शाइनिंग वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिटिस्ट क्लास, रिच एंड माइटी, तो फिर आज भी इंडिया विल रिप्रेजेंट रिच एंड माइटी ओनली. भारत गरीबों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भारत को अगर वो ला रहे हैं सेंटर स्टेज में तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्जिनलाइज और गरीब को आगे ला रहे हैं. दिक्कत कहां पर है? आप खुद अपने जाल में फंसते हैं. आप करते हैं राजनीति, आप समझते हैं आप हैं बहुत इंटेलिजेंट, बट आप जिस जाल को बुनते हैं उस जाल में खुद फंसते हैं. 2004 में आपने जाल बुना, 2023 में उस जाल में खुद फंसे हुए हैं. क्यों? क्योंकि आपने उस दिन इंडिया को रिजेक्ट किया. आज आपने उसी इंडिया को पकड़ लिया. उस दिन बीजेपी ने गलती की कि भारत को छोड़ा, आज बीजेपी ने भारत को पकड़ा, और आप आज गलती कर रहे हो कि भारत को छोड़. क्यों? क्योंकि आपने अलायंस का नाम I.N.D.I.A कर दिया है. तो यू आर नाउ सिनोनिम टू इंडिया, which means you are synonym to rich and elitist and powerful. That's what it means. आपने भारत को डंप कर दिया है. छोड़ा आपने है, इस सरकार ने नहीं. छोड़ तो आप रहे हो, बदल तो आप रहे हो, सरकार नहीं. सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है. अगर भारत बना भी दे इस देश को, तो भी रिप्रेजेंटेशन गरीब और अमीर, गरीब और कमजोर का ही होगा. अच्छी बात है, आपने उनको छोड़ दिया. आप चल दिए अमीर और ताकतवर की तरफ, इंडिया की तरफ. इफ दैट इज नॉट सफिशिएंट, योर 2014 कैंपेन, 2014 में जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत कर आए, उस वक्त का आपका कैंपेन क्या है, उसको भी याद दिला देता हूं. आपका 2014 का कैंपेन का स्लोगन है, आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद. यह है आपका कैंपेन. 2014 जब मिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार इलेक्शन जीत कर आए, द कैंपेन, योर कैंपेन ऑफ 2014 इज नॉट आम, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ. 2004 में आपने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ. आपने 2014 में आकर अपना कैंपेन बदल दिया और आपने कैंपेन बनाया, आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद. आपको भारत की याद 2014 में थी, क्योंकि आपको पता था कि शाइनिंग इंडिया के कारण वाजपेयी गवर्नमेंट हारी. तो आप इंडिया का रेफरेंस नहीं करना चाहते थे, आपने वहां भी भारत का ही जिक्र किया. व्हाई डिड यू मेंशन भारत इन योर स्लोगन एट दैट टाइम? One second. So your 2014 campaign slogan was आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद. Why did you mention Bharat in your slogan when you have so much of an issue with the name Bharat? अगर आपको भारत नाम से इतनी ज्यादा तकलीफ थी, तो 2014 में आपने भारत नाम अपने स्लोगन में क्यों डाला? You should have kept the slogan around India only, but that is not what you did. Now coming to this year or last year, Mr. Rahul Gandhi carried out a यात्रा. अब उस यात्रा, आज इतना इंडिया इंडिया कर रहे हैं ना कि इंडिया को ड्रॉप किया जा रहा है. क्यों ड्रॉप किया जा रहा है? वी आर इंडिया, I.N.D.I.A. आपका जो आपने जो यात्रा निकाली, जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उस यात्रा का नाम क्या है? भारत जोड़ो यात्रा. आपने इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं निकाला? क्या उस दिन आपको यह फिक्र नहीं थी कि इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन असॉल्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर? आप इंडिया जोड़ो यात्रा निकालना जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज मेड ऑफ स्टेट्स, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो आप यूनियन ऑफ स्टेट्स में यात्रा निकाल रहे हो, तो फिर इंडिया यात्रा निकालना चाहिए था, इंडिया जोड़ो यात्रा. आपने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाला. क्यों? क्योंकि वोट भारत से आता है और नाम इंडिया का. तो आपको चाहिए वोट, उसके लिए आपको नाम इस्तेमाल करना है भारत. लेकिन अगर इस देश में राष्ट्रपति ने
लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो आपको बहुत एतराज है, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉलिटिकल सपोर्ट उन लोगों से मिलता है जो इंडिया के साथ है, यानी जो माइटी और पावरफुल है. सो यू कैन नॉट डंप इंडिया, यू कैन नॉट लीव इंडिया इवन इफ यू नो वेरी वेल द वोट कम्स फ्रॉम भारत. तो आप यात्रा का नाम तो भारत रखोगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज नेम भारत, आपको उससे एतराज है, वो नाम आप नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि वो नाम लेने से वोट नहीं मिल रहा है. If you use the word Bharat, then it is all good, everything hunky dory. But if someone else uses Bharat, then you have a lot of problem. You start crying horse. अगर आपने बोला भारत, सब ठीक. आपने स्लोगन में डाला भारत, ठीक. आपने यात्रा का नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा, ठीक. बीजेपी ने अगर बोल दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, या बीजेपी गवर्नमेंट की हेड प्रेसिडेंट ने लिख दिया आई एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो आपको भारत से बहुत दिक्कत हो गई. क्यों? बीजेपी कैसे भारत बोल सकती है? ये तो हमारा कॉपीराइट है. The most critical question: if the use of the name Bharat by the president of this country is elimination of name India, as the Congress leaders, opposition leaders are saying, all the Congress leaders, all the opposition leaders are saying that writing the name Bharat or using the name Bharat by the president of India as, or referring herself as president of Bharat, is elimination of India from the constitution. Going by the same logic, use of the name Bharat by Rahul Gandhi in his yatra is not elimination of India from his priority list or preference list or the official word that he wants to use. आपने प्रेसिडेंट ने एक बार लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, भारत की राष्ट्रपति, तो आपको लगा कि इंडिया हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिस दिन आपने भारत जोड़ो यात्रा बनाया, आपने अपनी प्रायोरिटी क्लियर नहीं की क्या? आपने इंडिया को डंप नहीं किया क्या? आपने इंडिया को एलिमिनेट नहीं किया क्या अपने स्कीम ऑफ थिंग्स से? लॉजिक ये है कि जहां इंडिया से फायदा हो वहां इंडिया का नाम इस्तेमाल करो, जहां भारत से फायदा हो वहां भारत का नाम इस्तेमाल करो. अगर दूसरे करें तो चिल्लाओ. क्यों? साम दाम दंड भेद करके किसी तरह से सत्ता में वापस आओ. इसके लिए जो करना पड़े सो करो. ये है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन प्रेसिडेंट मुर्मू के प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में. सिर्फ ये है, उनको लगता है ये करके बीजेपी को इलेक्टोरली कहीं फायदा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने सारा बवाल खड़ा कर दिया और अपने को ऐसे जाल में फंसाया है. मुझे नहीं मालूम ये कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने ये कह के अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, अपने पांव को कुल्हाड़ी पे ले जाके मारा है. क्योंकि अगर आप इंडिया को प्रायोरिटाइज करोगे और भारत को छोड़ोगे तो ये देश में चुनाव आप नहीं जीत सकते. क्योंकि चुनाव आप साउथ इंडिया के वोट पे नहीं जीतते हो. आप गवर्नमेंट साउथ इंडिया के वोट या नॉर्थ इंडिया के वोट पे नहीं बनाते हो, गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पे बनाते हो. और मेजॉरिटी सीट का कैलकुलेशन बहुत क्लियरली बताता है कि ये भारत है जो आपको वोट करता है, इंडिया वोट नहीं करता है, वो तो ड्राइंग रूम में बैठा होता है. आज आप इंडिया के साथ हो, गवर्नमेंट तो भारत के साथ चल गई. अब आप खुद डिसाइड करो कि आपने क्या पाया और क्या खोया. आपने भारत खोया, उन्होंने भारत पाया. उन्होंने इंडिया को खोया शायद, आपने इंडिया पाया. बेनिफिट किसको, ये तो 2024 में पता चलेगा. लेकिन इट्स अ बैड पॉलिटिक्स एंड लॉजिकली till the time officially something is stated, to jump the gun, preempt it, and go on talking about things which are irrelevant is a bad political move. On that note, I take leave. Thank you so much. Please do give a feedback, because this kind of a show, I make a lot of effort to get all these data in, all these research in, going through all the history records and bringing the relevant pictures and then presenting it before you is extremely tough for me.
but that's what I do because I think you deserve to know what is the reality in a topic. जो भी relevant information है वो आपको मिलना चाहिए, उसका जो भी एनालिसिस है वो आपको मिलना चाहिए. What तो सब बताते हैं, but why कोई नहीं बताता. I am here who will tell you what happened, but I will also tell you why it happened and what is the implication of it. इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या, ये कह के फायदा क्या, नुकसान क्या. That is what I will do. So if you are interested in getting everything about a story, especially on such topics where I come and do a detailed show, capturing virtually every single aspect of a story, then please promote the channel, please promote my shows, please promote my videos, because when you watch the videos, when you promote the videos, then I get excited to do more research, come back and speak to you. So it is important for me that such videos which are in detailed in nature, maybe longish, but in detail in nature, capturing everything and putting everything at one place for you to watch, see, know and decide. It's very important that you promote it. तो आप जब प्रमोट करेंगे तभी इसका फायदा होगा, वरना ये सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. We'll wait for your feedback. I'm sure all of you will appreciate it. But if you have anything you still think that I've missed out or I have gone wrong somewhere, please do point that out and don't hesitate writing what you feel. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe.